today's topic is what? In a linear equation, one variable, first method, based on the graphical solution, you have total three possibility. When you represent linear equation graph, then three possibility what? Two line intersect. Two lines are parallel. And one line here you draw, another line It's a repeating coincident. one. Yeah, which is coincident, meaning overlap, coincident line. Yeah, Meaning it overlaps. possibility. So using the table, you can say using the table, first one intersecting line, directly using the ratio you can find out the value. So how to find? Okay, you can find A1 upon A2 is not equals to A1 B1 upon B1 B2 upon B2. B2. So, in parallel line, A1 upon A1 A2 ratio equals to B1 upon B2 B2 is not is equal equals to is not equals to C upon C1 upon C2. but all three ratio are equal. A1 upon A2 So it's is equal to B1 overlapping, upon B2. inconsistent. Yes. Right? So this is coincident line. You can find the value. So in that case, here say consistent. Here inconsistent. And here also you can say consistent. Understood, beta? Here also you can say consistent. So this theory you learn. As per CBSE graphical method not as per 2022 and 23 syllabus, but in substitution method and elimination method they can ask. So what is substitution method? For finding value of x and y. Because linear equation in two variable, pair of linear equation meaning two equation. You have one equation, you can't find the value. So for example, suppose you have one equation x plus y is equal to 9. What is given first equation? X plus y is equal to 9. Another equation is given x minus y is equal to 3. X minus y is equal to 3. This is your second equation. So what is substitution method? This is important word. So x plus y is equal to 9. Out of these two, any equation you make as a target. Right? Suppose from the first one, I take like that. Okay, x is equal to y, you take right side. So you get what? 9 minus y. Right? So you can say this is not equation number 3. You write like that. So here you write from equation 1. What you get? X is equal to 9 minus y. So यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट में से x is equal to 9 minus y. ये मिला बेटा. अब जो थर्ड इक्वेशन मिला है वो वैल्यू सेकेंड में पुटअप करें. कहां पे पुटअप करनी है? x के प्लेस पे. राइट? एक मेथड है, दोनों तरीके से बताता हूं एक ही इक्वेशन में, दोनों अलग अलग तरीके से सेम मेथड होगी, पोजीशन सेम. सो पुट अप इक्वेशन 3 वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. 3 की वैल्यू 2 में ही क्यों पुटअप करनी है? बिकॉज हमने थर्ड इक्वेशन कहां से मिला? फर्स्ट से मिला. हमको जो थर्ड इक्वेशन कहां से मिला है बेटा? फर्स्ट से मिला है. इसीलिए थर्ड की वैल्यू कंपल्सरी 2 में ही पुटअप करनी है. गलती से वापस 1 में पुटअप की, आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, बिकॉज दूसरा इक्वेशन का यूज हुआ ही नहीं है. यू डिडंट यूज द सेकंड इक्वेशन. सो यू पुट अप हियर, मीनिंग सेकंड इक्वेशन में आपको x कहां पे दिखता है? ये वाला. तो x की जगह पे पूरा ब्रैकेट लिखना है तो ब्रैकेट लिख दो. फर्स्ट में ऐसे लिखना तो ऐसे. डन.
So now open the bracket, 9 minus y is equal to 3. Now you don't know, simplify. Minus y is what? Plus 9 going that side and minus 9. So minus 2y is equal to minus 6. So y is equal to minus plus both sides. Y is equal to 2 is what? 3. So you get like that y is equal to 3. So now next step is remaining. Here third equation is given 9. Here you put up y value. So in equation number 3, put up y is equal to 3. तो यहाँ पे हम पुट अप कर दे, तो therefore x is equal to 9 minus 3. Therefore x is equal to 6. तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीनिंग x एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या मिली 6, 3 मिल गई कि नहीं बेटा? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, राइट? तो एक ये तरीके से होगा. दूसरा आप सोचो कि क्या हो सकता है. सपोज सेकंड इक्वेशन में से थर्ड बनाए तो क्या करना है. सपोज अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ. किसी को लगे मुझे सेकंड में से थर्ड इक्वेशन बनाना है. हमारे पास दो इक्वेशन ऐसे है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर. कोई बोले सर मुझे सेकंड में से थर्ड इक्वेशन फाइंड करके फर्स्ट में पुटअप करना है, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड में से थर्ड पाएंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 3 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 3. ये वैल्यू हमको फर्स्ट में पुटअप करनी है. तो पुट इक्वेशन 3 वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. वो पुटअप करें तो क्या होगा, कहाँ पे पुटअप करनी, x की जगह पे. तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9. यहाँ पे क्या मिला 2y, 9 प्लस 3, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 12/2. 12/2 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा. सो राइट. सो यहाँ पे भी आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो बेटा. गेट इट? Yeah. तो सेम वे यू गेट योर आंसर, राइट ना. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू ली उसको सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया है. सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है. रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना मीनिंग, दूसरा मीनिंग क्या होगा, रिप्लेस करना है. दैट्स व्हाई ये मेथड का नाम क्या दिया गया है, नेम है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड. अंडरस्टूड बेटा? Yeah. In exam beta, like they're taking given, solve the following pair of equation by substitution method. देखिए unlike like us beta, particular method wise, yes, they give particular method, use this method only, like that condition. Okay. So in this case you use method only beta. So here different number given, in some fraction given, some decimal is given, some square root number given beta. So how to solve this? So check equation number, question number 2, s minus t is equal to 3, s by 3 plus t by 2 is equal to 6, right? Using substitution method we have to solve. कैसे solve करना बेटा, यहाँ पे बोला गया है using substitution method. So एक्सरसाइज जो है हमारी 3.3, क्वेश्चन नंबर 1 उसका सेकंड क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. इसको हमको सॉल्व करना है. अब बेटा एग्जाम में आपको ट्राई करना है कि आपके लिए इजी वे में सॉल्व हो जाए, हार्ड नहीं बनाना है मैथमेटिक्स को. कितनी बार क्या करते हैं, हार्ड वे अप्लाई करते हैं, बाद में आंसर रॉन्ग आता है या प्लस माइनस मिस्टेक होती है. तो ये दोनों में तुमसे उनको आसान सा इक्वेशन कौन सा लगता है, आसान सा इक्वेशन, फर्स्ट वन
जैसा नो, Yeah. फर्स्ट को ही सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट में से ही थर्ड इक्वेशन बनाओ, पहले आइडेंटिफाई करो आसान सा कौन सा, उसमें से ही थर्ड इक्वेशन आपको बनाना है बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से s is equal to 3 plus t. Equation number 3, put up equation 3 value in equation number 2. तो s की जगह पे क्या पुट अप करेंगे, 3 plus t होल डिवाइड बाय 3, यहाँ पे t by 2 होगा और 6 एज इट इज आएगा बेटा, मीनिंग वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब उसमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम क्या 6 होता है, तो यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई के पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको बात याद रखनी है बेटा। और यहाँ पे 3 2 6 इज इक्वल टू 6, ओपन ब्रैकेट करे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करे, फिर 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई, 2 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t, तो एज इट इज है बिकॉज वो ब्रैकेट के बाहर है। और ये जो 6 डिवीजन में है डेल्टा ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर होगा 5t इज इक्वल टू 36 प्लस 6 हो जाएगा, तो माइनस इज इक्वल टू क्या होगा 30। सो 5t इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या है 30 है, 5t इज इक्वल टू आंसर क्या है 30। सो t इज इक्वल टू क्या होगा 30 बाई 5 इज इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू क्या मिली बेटा 6 मिल गई, एक मिल गया। हमको अब s ढूंढना है, तो वो t की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट अप कर दें, राइट। पुट अप t इज इक्वल 6 इन इक्वेशन नंबर 3, ऑलरेडी सिंपल सा बना के रखा है हमने, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। सो सॉल्यूशन मीनिंग ऑफ इक्वेशन s कॉमा t इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 9,6, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, Yeah. So could you send me a photo of this one? नेक्स्ट क्वेश्चन, check, third is like similar simple only, fourth number, Yeah. fourth is what 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3, that is decimal form given beta. What is given, decimal form. Look at here beta, here decimal number is given 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. Second equation 0.4y 4x sorry plus 0.5y is equal to 2.3. Using substitution method, because main question is what, find the solution using substitution method. So you have to use only substitution method. कितनी बार क्या होता है, आप सॉल्व करने बैठते हो डेसिमल नंबर आ जाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम वही होता है, डेसिमल आ गया, हाउ टू सॉल्व, सिंपल। डेसिमल जब भी आए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेसिमल का सबसे पहला काम उसको फ्रैक्शन बना दो बेटा। 6 स्टैंडर्ड से ये आता है, 0.2 का मतलब क्या आता है 2/10 आता है, डेसिमल का क्या बना देंगे हम, फ्रैक्शन बना देंगे, तो इससे यूजी होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन क्या होगा 2/10x होगा कि नहीं, 2/10x 3/10y is equal to 13/10, yes or no? Yeah. तो यहाँ पे 2 के साथ x मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ y होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10। अब 10 दोनों के डिवीजन में है तो वी कैन कट, तो हमारा इक्वेशन क्या मिला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, नंबर 3, Equation number 3. प्रॉपर डेसिमल के बिना मिल गया क्या नहीं बेटा, बिल्कुल। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वैसे ही होगा बेटा, 4x/10 5y/10 इज इक्वल टू 23/10, अभी भी 10 कट हो जाएगा बेटा, yes or no? Yeah.
इसीलिए आप डायरेक्टली भी आप ऐसे लिख सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है तो 10 कट होने वाला है तीनों के साथ एलसीएम में। तो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है। अभी देखो दोनों इक्वेशन में x के साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में है कि नहीं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है y के साथ, यहाँ पे y के साथ 5 है। तो उसको कैसे सॉल्व करें? तो ध्यान से फ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे सॉल्व करना है। कोई भी इक्वेशन लो, यहाँ पे मेथड सेम रहने वाली है, कुछ शॉर्टकट नहीं मिलेगा। पहला शॉर्टकट हमको मिल गया जो डेसिमल बनाया। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 इसमें से बनाओ तो पहले 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y होगा कि नहीं? पूरे 3y को हिस्सा ले जाओ तो अब तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? 13 माइनस 3y होल डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये हमको 5 नंबर का इक्वेशन मिला, किसमें से मिला? थर्ड में से। तो अब ये वैल्यू हमको कहाँ पे पुट अप करनी है? इक्वेशन नंबर 4। तो पुट इक्वेशन नंबर 5 वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। क्यों? थर्ड में से 5 मिला है इसीलिए। तो जहां जहां पे भी यहाँ पे 4x है, तो 4x का मतलब 4 मल्टीप्लाई x, मीनिंग ब्रैकेट में पुट अप करना है। देखो 13 माइनस 3y होल डिवाइड बाय 2 प्लस 5y है इज इक्वल टू क्या है बेटा? 23। अब आप देखो यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 2 हो सकता है, ऑब्वियसली 4 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? 4 2 जा होगा। अब नाउ ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर तो है नहीं, 2 को क्या करना है? दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 13 कितना होगा? 26। तो देयरफॉर 26 माइनस 2 3 जा 6y, 5y तो है एज इट इज इक्वल टू क्या होगा? 23। तो नाउ माइनस 6y प्लस 5y क्या होगा? माइनस y। ओके, ना प्लस 26 उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 26। सो यहाँ पे माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 होगा, दोनों साइड माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो y इक्वल टू क्या होगा? 3। दिस इज योर y। जैसे ही y मिल जाए तो हमको इक्वेशन 5 में ही डायरेक्ट पुट अप कर देना। हाँ, यहाँ इसमें कोई भी इक्वेशन में 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट अप करोगे, x की वैल्यू सेम ही मिलेगी। बट यहाँ पे क्यों पुट अप करना? ऑलरेडी हमने राइट साइड y को रखा है, लाके रखा है प्रॉपर्ली, पुट अप करके सिंप्लीफाई ही करना बाकी रह गया बेटा। तो देयरफॉर पुट अप y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 5। और हर एक स्टेप आपको प्रॉपर्ली लिखना है बेटा, यू हैव टू राइट। सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, y की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 ब्रैकेट्स में 3 होल डिवाइड बाय क्या है? 2 है। चलो 13 ब्रैकेट्स में 3 है, 3 3 जा 9, 13 माइनस 9 बाय 2 4 होगा। आंसर क्या होगा? 2। तो वी कैन से x इज इक्वल टू 2। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, 3, x is 2, y is 3. Understood beta? Yes, sir. In question 2 is given what simple condition? Here 2x plus 3y is equal to 11. First equation is given. 2x minus 4y is equal to minus 24. Like that given. So hence find the value of m. हमको क्या करना है बेटा? यहाँ पे फाइम की वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया गया है। जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है। क्या दिया गया फर्स्ट इक्वेशन? 2x, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें इक्वेशन दिया गया है कि 2x प्लस, फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है बेटा यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी मेथड, बिकॉज
इस क्वेश्चन में आपको कोई भी मेथड बोली नहीं गई है, तो एक्स के वाई की वैल्यू एग्जाम में ऐसा पूछा था, कोई भी मेथड आपको आती हो बता सकते हो एज पर सिलेबस, ठीक है, बट मेथड शो करनी है, बट बोला गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, तो वही मेथड आपको अप्लाई करनी है। तो इन दोनों में से मैं कोई भी कर सकता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। चलो इक्वेशन 2 को वैसे ही सिंप्लीफाई, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, मैं इक्वेशन 2 सिलेक्ट कर रहा हूं, इसका एक रीजन है, अभी पता चल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में 2 कॉमन ले लूं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24 होगा। 2 को उस साइड ले जाओ, 2 को सामने की ओर ले जाओ, तो क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, माइनस 12। इक्वेशन नंबर राइट, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, माइनस 12 प्लस 2y, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y माइनस 12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। कैसे आइडेंटिफाई किया है ऐसे, तो देखो a इवन नंबर है, 4 भी इवन है, 24 भी क्या है, इवन नंबर है, तो हम ऐसा सोच सकते हो पॉसिबल उतना कॉमन लेके कट कर दो बेटा, तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी। नाउ अब 3 की वैल्यू 1 में पुट अप करेंगे, क्यों, क्योंकि थर्ड इक्वेशन कहां से मिला है हमको, 2 में से। where to find these 3 number, from the 2, that's why we put up 3 in the equation number 1. So here put up equation 3 value in equation number 1. So यहाँ पे जहां जहां पे भी x है, मीनिंग यहाँ पे x है ना, तो 2 into ब्रैकेट्स में 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11. So 2 into 2y 4y plus minus 2 into minus 24 plus 3y is equal to 11. चलो 4y plus 3y 7y is equal to 11 minus 24 going to outside, then 7y is equal to 35. Therefore y is equal to 5. This is your value of y. This value put up in equation number, so put up y is equal to 5 in equation number 3. So if x is equal to 2 into 5 minus 12, therefore x is equal to 10 minus 12 is equal to 2. This is your equation answer 2. So here this is not an actual question. Here the question is what? Find the value of f if in which y is equal to, यहाँ पे हमको दिया गया y is equal to mx plus 3, हमको m ढूंढना है। x एंड y कौन सा यूज करना है, जो सॉल्यूशन इक्वेशन यहाँ से हमको मिलता है सॉल्व करने के बाद, y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 2, वो वैल्यू यहाँ पे पुट अप करके हमको क्या करना है, m ढूंढना है। तो m की जगह पे अब क्या आएगा, पता चल गया 5, therefore m, x की जगह पे क्या आएगा 2, तो हम लिख सकते हैं 2m plus 3, 3 को एक साथ ले जाए तो हम लिख सकते हैं 2m is equal to 5 minus 3, then m is equal to 2 by 2 is equal to 1. So here m is equal to 1. This is your answer. Okay, understood Sri?